ہو گیا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں عدنان سنی پرواز ہے جنون کے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے. آج آئے ہوئے ہیں استاد حافظ امان اللہ کی چھت پر, اور ہمارے ساتھ پاکستان کے موسٹ سینئر جو اینکر پرسن ہے کبوتر پروری کے, جس کے اندر سب سے پہلے استاد تراب حیدر صاحب ہیں, اور ہر دل عزیز استاد کامران عباس نقوی صاحب ہیں, اور یہ سید ذوالقرنین حیدر صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ رومان جی رومان ہے, رومان ہے, اور چھوٹو رومان, یہ عمر دراز بھائی, اور یہ استاد حافظ امان اللہ صاحب ہیں. تو اب کیمرہ کر لیتے ہیں ان تینوں کی طرف اور سٹارٹ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انتظار تو کافی لوگوں کو کرا دیا, ہاں کیونکہ 1-1:30 کا کہا تھا, اور اب دوستوں ہم نے کھانا بھی کھا لیا. کامران میرے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ دوستوں کو مل کے آگے بڑھائیں گے. اور سنی بھی موجود ہیں. عمر صاحب تو خیر انہوں نے ذمہ داری سنبھال ہی لی ہے. اس وقت اسٹیٹس اپلوڈ کیا تھا ہم نے, تو خیر مل کے ہی سبھی نے کر دیا کہ کچھ دھماکے دار خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اور موجود ہیں اس وقت ہم لاہور کے ایک جوشیلے پلیئر اس کے ساتھ, جانے پہچانے, اور اس طرح سے جانے پہچانے کہ کوئی ان کے متعلق گفتگو کر کے اب کہیں جا نہیں سکتا. ہماری مراد ہے جی استاد حافظ امان اللہ صاحب ان کی طرف موجود ہے. زبردست پلیئر بھی ہیں, مہمان نواز بھی ہیں, پیار کرنے والے بھی, اور بہترین سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یہی اصل چیز میں اس کھیل کا اصل حسن بھی ہے. اور آج ان کی دعوت پہ یہ سارا میڈیا آج یہاں موجود ہے, ان سے اپنی گپ شپ کا آغاز بھی کریں گے. کامران کچھ. جی السلام علیکم. جی ہم موجود ہیں, جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے تراب بھائی نے بھی, کہ استاد حافظ امان اللہ صاحب کی طرف موجود ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ استاد حافظ امان اللہ صاحب لاہور کے ان چند نوجوان کھلاڑیوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت جلدی اپنا جو ہے نام بنایا. لاہور جیسے شہر میں بڑے بڑے جو ستون ہیں کبوتر پروری کے موجود ہیں, ان کے درمیان میں اپنا آپ دکھانا, اپنا آپ منوانا بہت کم لوگوں کے بس کی بات ہے. بہت کم لوگ ہی ایسے ہیں لاہور میں جو بہت جلدی سے جو ہے عروج کی طرف گئے ہیں. ان میں سے ایک نام استاد حافظ امان اللہ کا بھی ہے. پچھلے 3 سے 4 سال سے یہ باقاعدہ طور پہ شوق سے منسلک ہوئے ہیں. تو شوق تو یہ پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن جو انہوں نے چھت بنائی ہے اب, اور اس کے بعد انہوں نے 1-to-1 مقابلے بھی لگانا شروع کیے ہیں, تو بڑی جلدی انہوں نے جو اپنا نام بنایا, ایک مقام بنایا, اور آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. ان کے جنون اور ان کا جو اگریسونیس ہے ان کے اندر, اس کو لیتے ہوئے اکثر اوقات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے بہت زیادہ تعداد میں جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ان کے مقابلے طے ہوتے رہتے ہیں. اور ان کی طرف سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چاہے یہ ہاریں چاہے یہ جیتیں, وہ جوش اور وہ جذبہ اور وہ جنون ان کا ختم ہی نہیں ہوتا. یہ ہار بھی رہے ہو نا تو خوشی ہو کے ہار رہے ہوتے ہیں کہ لو جی فلانے سے بازی تھی ہار گئے. یہ جیت بھی رہے ہو تو یہ اسی طرح سے جیسے نارمل ایک انسان ہوتا ہے کہ جیت گئے بس ٹھیک ہے جیت گئے. تو یہ مقصد اس سے یہ ہے کہ جی نوجوان پلیئرز بہت کم ہیں لاہور میں جو صرف شوق کو جو ہے سامنے رکھتے ہیں, اور آج ہم ان کے پاس موجود ہیں. شوق کے حوالے سے ہم بات کریں گے. استاد حافظ امان اللہ صاحب, ابھی ہم نے کھانا کھایا, بڑا مزے کا بڑا زبردست کھانا تھا, مہمان نوازی ان کی طرف سے بڑی اچھی ہوئی. اب مکمل طور پہ ہم فارغ ہو گئے, پیٹ ہمارا بھر گیا, پیاس بھی بجھ گئی ہے, پانی شانی پی لیا, چائے پی لی ہے. اب ہم آ گئے حافظ صاحب کی طرف, اور ان سے پوچھیں گے کہ بھئی اب یہ کھانا وانا تو ہمیں کھلا دیا, اب سارے میڈیا والے ایک ہی دن بلانے کا مقصد بھی کوئی ہو سکتا ہے, کوئی ایسا ہو کہ بھئی سب کو اکٹھے بلایا. کیونکہ اگر صرف شوق کی بات کرنی ہو, کبوتر دکھانے ہو, تو ایک آدھا تراب بھائی آ جائے, میں آ جاؤں, عدنان آ جائے, ذوالقرنین آ جائے, کوئی بھی ایک آدھا آ جائے تو ہو جاتا ہے نا. سب کو اکٹھا کیوں بلایا, اس پہ بات کریں گے استاد حافظ امان اللہ صاحب سے, ان سے پوچھیں گے. جی السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر.
अच्छा थोड़ा लाउड बोलिएगा सब लोगों के, ताकि जो है ना आवाज बराबर चली जाए। तो जितनी थोड़ी लाउड होगा उतना क्लियर लोगों को आवाज जाएगी। मकसद बताएं, आज बुलाया सबको माशाल्लाह। जी मुझे ना लाहौर के एक उस्ताद ने ना चैलेंज किया हुआ है। अच्छा जी, लाहौर के एक उस्ताद ने उसने मुझे चैलेंज किया मार है गए कि भाई। आप जिस तरह 2 माह छोड़ के ना जैसे मर्जी मेरे साथ बाजी लगाए। वो चैलेंज की वीडियो मेरे पास है जो मैं सब भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। दिखाने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ शौक तय करें, क्योंकि मैंने 14 प्यारे मेरे लगे हैं मलक अरशद साहब से पैरागॉन सिटी। तो वो भी इसी तरह मेरे साथ शौक तय करें और बड़ेपन का मुजाहरा करें। तो मैं इसलिए सारी मीडिया को इकट्ठा किया ताकि उन तक पैगाम पहुंचा सकूं। और सबसे पहले बात है, हम आतिफियो साहब के मुतालिक मैंने कुछ बात करनी है कि उनको वो भी ये कहते हैं कि जी मैं कबूतर को देख के बता देता हूँ। जिस तरह बाबा सिकंदर बता देता था इसी तरह ये भी बता देते हैं कि जी ये 4 बजे बैठेगा, ये 3 बजे बैठेगा। एक तो मेरा उनके लिए भी पैगाम है कि अगर इतना अच्छा आपको पता है, इतनी आपको मालूमात है कि ये कबूतर 4 बजे बैठ सकता है, तो हमारे साथ शौक करें, मैदान में आए, शौक करके दिखाएं। फिर तो आप कहाँ घूमे इतने सालों से, फिर मैदान में आए ना, हमारे साथ शौक करें, हमें भी पता चले भाई कि ये बहुत समझदार लोग हैं। बजाय इस तरह के वो लोगों को गुमराह करें, मैं चाहता हूँ आप गुमराह ना करें, आप शौक करके दिखाएं। जब शौक करेंगे ना फिर लोग आएंगे आप। ये मेरा मिशन है। किसने कर दिया चैलेंज आज? मुझे चैलेंज किया, ये मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ ज़रा मीडिया को। ये ज़रा की तरफ से साहब को सिर्फ 2 माह छोड़ थोड़ा सा के हर सीजन की बाजी की दावत है और चैलेंज भी है। फिर दिखा सकते जी, फिर प्ले करें और कैमरा में इसको जरा सेंटर करें। उम्र नजर आ रहा? बढ़िया ना? लाला एहसान की तरफ से हाफिजुल मानउल्लाह साहब को सिर्फ 2 माह छोड़ के हर सीजन की बाजी की दावत है और चैलेंज भी है। अच्छा उस्ताद क्या नाम बताया ना? चैलेंज हैं। भी होने लग लाला गए एहसान जी चैलेंज भी होने लग गए आप। जी मुझे चैलेंज हुआ है ना, तो मैंने कहा अगर चैलेंज किया भाई ने तो फिर उनका शौक बड़े पैमाने पे पूरा किया जाए। ये छोटे छोटे चैलेंज करने, ये अस्सू की कबूतरबाजी हो गई, ये चेतर की हो गई। आप इतने बड़े उस्ताद हैं लाला एहसान साहब, और इनका बेटा है उस्ताद उस्मान साहब। आप इतने बड़े माशाल्लाह उस्ताद हैं, ठीक है, आपको जेब नहीं देता अस्सू का चैलेंज करना या चेतर का चैलेंज करना। आपने चैलेंज करना था, मुझे बैसाख का करते, मुझे डेट का करते आप चैलेंज, तो मैं आपका कबूल भी करता। लेकिन अब मेरा चैलेंज है आपको कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। अगर आप मेरे से बाजियां लगाएंगे तो मैं आपको भरपूर वेलकम भी करूंगा। और आप मेरे साथ ना 14 प्यारे लगाएं जिस तरह मेरे लगे हैं मलक अरशद साहब से। बैसाख के मेरे उनके साथ लगे हैं 12, और 2 साथ ही जो मसलन के बैसाख ख़त्म होगा ना, साथ ही बिल्कुल एक मंगल और एक जुमेरात हमारे प्यारे इस तरह लगे हैं कि हमने इतवार को भी उड़ना है, मंगल को भी उड़ना है, जुमेरात को भी उड़ना है। यानी कि नागे नागे से उड़ते नागे नागे से हमने ये नागे नागे से उड़ना है प्यारे वो है प्यारे वो वन डे। मेरा इनको ये पैगाम भी है और चैलेंज भी है। और जो आदमी लाला एहसान की तरफ से चैलेंज दे रहा है उसको भी चैलेंज है कि तुम भी अपने घर रखो, और उनके जितने भी उनके साथ बैठने वाले हैं ना उनको भी मेरा चैलेंज है। जो उनके बंदे हैं ना उनके साथ जो बैठे हुए हैं उनको भी चैलेंज है कि आप भी लगाएं मेरे साथ। अच्छा मैं एक बात बीच में कर देता हूँ कि जी देखें, चैलेंज तो चले किसी ने अगर किया है तो किया। हाफिज साहब बड़े अच्छे, मैंने पहले भी जैसे कि बताया भी है कि भाई एक दबंग नौजवान है, चैलेंज करते रहते हैं। लेकिन हम इसको ना एक खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं, पढ़ी लिखी बात अच्छी लगती है कि शौक है। अगर हम इसको इस तरह से चैलेंज है फलाना है ये है, नहीं तो उन्होंने इस तरह कहा, उन्होंने कहा है ना, हाँ, उन्होंने तो कह दिया। लेकिन मैं एक बात करूँ अगर वैसी लैंग्वेज हम भी इस्तेमाल करेंगे तो फर्क तो ये मैं बताता हूँ कि जी ये इनकी तरफ से दावत शौक है कि शौक को मलूज़े खाते रखते हुए शौक है। क्यों जी तुराब भाई? नहीं, अच्छी बात की आपने, हाँ। बिल्कुल अच्छी बात की। एक अच्छे स्पोर्टमैन स्पिरिट में हाँ, इनकी तरफ से दावत जा रही है। प्यार मोहब्बत के माहौल में एक अच्छा शौक होना चाहिए और बढ़ चढ़ के होना चाहिए। और शौक ही तो मुकाबले ही तो हुस्न है असल में। हाँ मुकाबला, कबूतरों का मुकाबला है जी, हमारे लफ्जों का या हमारा मुकाबला, जातियात का जी मुकाबला। अपनी बात आप गुफ्तगू जारी रखें आप। तो मेरा दावत शौक है जी लाला एहसान साहब को और उनके बेटे उस्मान, उस्ताद उस्मान साहब कि आएँ मेरे साथ इसी तरह मुकाबले तय करें जिस तरह मेरे मलक अरशद साहब से हुए हैं। ये चेतर को छोड़ें, अस्सू को छोड़ें, सीधे सीधे आप मुझे कहेंगे
चैत्र के 4 इतवार लगे हैं हमारे, विसाख के 4 लगे हैं। छोड़ो यार इनको, ये छोटे छोटे प्यारे श्यारे, ये 8 प्यारे छोड़ें आप 14 प्यारे उड़ाएं। अगर आप ये बात करेंगे ना कि आपके लगे हुए हैं, इतवारें मेरी भी लगी हुई हैं, वो अपनी जगह, मेरी भी इतवारें लगी हुई हैं, वो अपनी जगह। आप मेरे साथ ना इस तरह बड़ा शौक करें, उसके लिए मैं तैयार हूँ, और आपको दावत शौक भी है। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी, आप जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं, जब चाहें आप मेरे से मुकाबले तय कर सकते हैं। आप रात के 2 बजे भी मेरे पास आएंगे, फिर भी आप एहतराम है आपके। दूसरा नंबर पे जो हमाद भट्ट साहब हैं, उनका मैंने 1-2 मैसेज सुने हैं। वो लोगों को इस तरह गुमराह कर रहे हैं, कहते हैं कि जी हमें बहुत पता है, हमें बहुत पता है कि जो कबूतर 3 बजे बैठ रहा है, जो कबूतर 4 बजे बैठ रहा है, या जो कबूतर सुबह 12 बजे बैठता है, जो कबूतर रात को 7 बजे बैठता है। हम आदमी फियो भट्ट साहब, आपको भी मेरा दावत शौक है, आप भी अपने घर रखें, इस साल ही रखें। अगर आप कहेंगे ना, आपके लिए ये देख लें, यहाँ पे खुडे भी नहीं बने हुए, आपके लिए ये भी दावत शौक है, आप अपने घर रखें, मैं यहाँ से उड़ा लूँगा आपसे जी इसी साल का। यहाँ पे खुडे भी नहीं अभी बने हुए। आपको ये भी शौक है, मैं अपनी जो छत है ना एक तरफ रखता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैंने जो जिन से मुकाबले करने मैं कर रहा हूँ। हम आदफियो भट्ट साहब, आपको इस छत से मेरा चैलेंज है, यहाँ पे खुडे भी नहीं बने हुए, दिखा दूँ। और जेड का, ठीक है, आपको जेड का चैलेंज है, क्योंकि आपको माशाल्लाह बहुत समझ है। आपको तो चाहिए, आपके घर में कबूतर मौजूद हैं, आप उनमें से निकालें, जो 4 बजे बैठ रहा है, जो 5 बजे बैठ रहा है, जो 6 बजे बैठ रहा है। आप अपनी फ़र्क से, आपको बहुत हैं 10, 12, 15 कबूतर, आप लाएँ, मैदान में आएँ और मेरे साथ शौक करें। मैं आपके लिए भी शौक के लिए रेडी हूँ, आपको भी दावत शौक है मेरी तरफ से। और उन उस्तादों के लिए मेरा एक पैगाम है, जो उस्ताद कमरों में बैठे हुए हैं और कह देते हैं हमारे पास 20 जोड़े हैं, हम बच्चे छोड़े तो ये कर देंगे, जब बाजी का वक्त आता है बाजी लगाते नहीं हैं। मैं बहुत से उस्ताद ऐसे, मैं नाम नहीं अब लूँगा, जो बैठे यही कह रहे हैं, सारी ज़िंदगी यही उनकी गुजर गई है, कहते हुए कि 2 जोड़े ऐसे बन गए ने, बस शामा कर देंगे। आज तक मेरे भी दाढ़ी में चिट्टे आ गए ने, यही सुनता आ रहा हूँ, बस 2 जोड़े बन गए ने, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, 1 जोड़ा बन गया। अभी आपने समझ भी बहुत ज़्यादा। आपने जोड़े क्यों नहीं बनाए? आप मुझे बताएं, आपने उस्तादी ली थी, आपने जोड़े क्यों नहीं बनाए? आप बताएं। यार मैं ये थोड़ा शुगर पे इस तरह बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो serious हो गया बच बहुत गया हूँ। serious हो गया ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ बच गया हूँ, मैं बच गया हूँ। हाँ, उस्तादी वापस करें। मैंने तो लगता करनी पै जानी है मैंने। बात ये है, हाफिज मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, बात उसने बड़ी अच्छी की कि आपने क्यों नहीं बनाए। भाई बात ये है कि ये जो खेल है, ये तो समुंदर है, ये जो शौक है बनवरी, तो उसमें जो बड़े बड़े दावे हैं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। हमें इससे ज़रा इज्तनाब कर लेना चाहिए। अब कर लेना चाहिए, कम से कम अब भी अब कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हर बंदे को पता है। हाँ। अब माशाल्लाह इंटरनेट है, सबके पास है, रिसर्च है, हर चीज की रिसर्च है लोगों के पास, हर चीज का पता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये भी नहीं है कि ये बातें गलत हैं, ये भी नहीं है कि ये बातें गलत हैं। अगर हाजी मलक लतीफ हुमायूं साहब कोई बात बताएंगे तो यार उसके पीछे एक बहुत बड़ा तजर्बा पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे सही है। मुबश्शिर खोखर बताएगा तो उसके पीछे भी एक तजर्बा है। वो नौजवान जरूर है हमारे बराबर का, लेकिन वो उस वक्त से बाजियां उड़ा रहा है जिस वक्त मतलब छोटे छोटे होते थे। मुझे उन्होंने बताया, मैंने 92 में पहले बाजी उड़ाई। मुबश्शिर उड़ा रहा है। तो इस तरह जो चेयरमैन साहब हैं, मतलब जो सीनियर लोग हैं, अगर वो कोई एक आधा पॉइंट बताते हैं तो ये बात गलत नहीं है कि उनमें ये कोई दो राय नहीं है कि वो बातें गलत होती हैं। बातें होती ज़रूर हैं, लेकिन ये कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि कबूतर में फला चीज़ होनी चाहिए, तो मेरे घर में अगर वो कबूतर मैंने रखी है ना तुराब भाई, तो वो चीज़ें हर कबूतर में होनी चाहिए। अगर मैं फिर एक आधा दिखाऊं कि यार इसमें वो है, तो बाकी होंगे तो मैं फिर फजूल दाने डाल रहा हूँ ना। तो ये बात है, होना चाहिए सही, लेकिन ये कि कुछ लोगों की मजबूरी होती, नहीं शौक कर सकते, तो उसे क्यों बाकी भी शौक चीज़ रगड़ रहे भाईजान। लेकिन खराब ना करना शौक। अच्छा, शौक नो खराब ना देखो ना, कितने नौजवान चैलेंज आपको किया किसने था पहले? वो तो लाला लाला एहसान साहब की वीडियो ने दिखाई है किया था। इन्होंने जी वो दावत शौक आपने उनको दे दिया। जी। और मेरे ख्याल में जिस तरह की उन्होंने बात की, उसके बाद तो मेरे ख्याल में कबूल कर लेना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो मेरे ख्याल में 2 महीने छोड़ के अग्रेसिव बात की है उन्होंने। जी। Aggressive उन्होंने कहा काफी 2 माह छोड़ के हर सीजन 2 महीने हर तरह- दिसंबर जनवरी जी शायद दिसंबर जनवरी कहते छोड़ जेठ हाड़ी में हर कहता तरह हूँ। की बाजी जो है ना, हर तरह की मैं बाजी उड़ाने के लिए था। मेरा उनको पैगाम है, ना मेरे पास चैत्र वाले कबूतर हैं, ना मेरे पास अस्सू वाले, मेरे पास बैसाख और जेठ वाले हैं। मेरे साथ वही
उनके मसलन के 8 पे आ रहे तो हैं आप वही चेतर में उड़ा लेना क्या है? तो वो गाड़ी नहीं बैठेंगे, आगे 2 सालों में नहीं बैठे, वो रात रह जाते। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि क्यों ना इसको बढ़ा लिया जाए। मैंने इसको 2 गुना नहीं किया, मैंने इसको 3 गुना कर दिया। नहीं, देखो ना, आपको कैसे पता वो जब साग और जेठ के ही कबूतर है? भाईजान वो इस तरह मुझे पता ना, क्योंकि मैं इन हूँ इसमें, मुझे इनके समझ है, मैं इनमें इन हूँ। मैंने देखे ना नहीं, 20 उड़ा- साल उड़ा के रोके जी हुए जी जी उड़ा के, हाँ, उड़ा ये के। बताएं ना कि जी, हाँ, टोटल मेरे इस पास तरह जो है ना, मैंने उड़ा के उनकी सारी Practical। प्रैक्टिकल करके मैदान में, क्योंकि इसको कोई बंदा ये भी नहीं कहेगा कि ये फेल है क्योंकि ये उड़े हुए हैं। सही है। ये तो उड़े हुए हैं ना, मेरे पास इनका रिजल्ट है। देखिए हम कबूतर को इसीलिए रखते हैं ना कि ये शाम तक उड़े या शाम तक बच्चे उड़ाए। तो अब मेरे पास उड़े हुए कबूतर हैं, शाम तक भी बैठे हुए हैं सारे, तो मैंने वही कबूतर ही यार, रखे। शाम तक बच्चे तो आप भी कैसे उड़ देते हैं? उड़े हैं भाईजान, ये चेतर में उड़ाए थे। बताएं जरा आप भाई। देखो यार बात शुगर भी लगाने दो ना थोड़ा। देखो शाम तक नहीं उड़ेंगे तो ये हार जीते कहाँ से होंगी। और ये आजकल के जो उस्ताद हैं हमारे, आप उस्तादों के खिलाफ ही हो गए। नहीं नहीं, यार बैठे बैठे शाम तक बच्चे जो उड़ रहे हैं हाँ, नहीं बैठे बैठे कहा उन्होंने उसके तो उड़ रहे हैं ना, वो तो बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो। मतलब वो जो बता रहा है कि भी लोग कहते हैं कमरे में बैठ के कि ये जोड़ा ऐसा लग गया है, इसके बच्चे उड़ते हैं। यार आप कमरे में बैठ के तो आप रात के 12 बजे तक भी बिठा लेंगे। हाँ, हाँ, वो तो कमरे में बैठ के तो आपने रात के 12 भी बजा देने हैं। अपने और साथ ये भी भी हो बिठा सकते हैं अपने साथ भी बैठे रहेंगे। और कमरे में जिस वक्त आप बैठे होंगे ना, तो आपके अलावा फिर हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो बात ये है, इसी से हटके बात ये जो कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं, ये शौक की बात कर रहे हैं। और अभी इन्होंने एक बात की उस्ताद फियो के बेटे के मुतालिक। और वैसे भाईजान आप यंगस्टर हैं, दिलेर खिलाड़ी हैं, अब कुछ हैं, जब एक बंदे ने रखे ही नहीं हुए, नहीं रखे हुए हैं, उन्होंने अपने घर रखे हुए। ब्रीडिंग सेटअप बनाया। ब्रीडिंग सेटअप हाँ, है। उनके खुड्डे शुड्डे बने अच्छा, हुए हैं, उड़ाते हर नहीं चीज हैं। बने हुए हैं। हाँ जी, हर चीज बनी हुई है। अरे तो उन्होंने दावा क्या किया? उन्होंने दावा ये किया है कि मैं ये बात बता सकता हूँ कि ये कबूतर आपका एग्जैक्ट 4 बजे बैठेगा, अच्छा, और ये कबूतर आपका बैठेगा 5 बजे, ये कबूतर आपका बैठेगा 6 बजे, ये टेम्परेचर नहीं 2 बताया बजे। उन्होंने, ना हाँ, नमी बताई। जी वो नहीं, वो कहते हैं सिर्फ आप कबूतर को वीडियो बना के मेरी तरफ फेंक दें, अच्छा, मैं आपको उसके बारे में हर चीज बता दूंगा, वो कितने बजे तक बैठ सकता है। ये कामरान ने भी आपको बात बताई है, जी। बड़ा एक अकलमंदाना गुफ्तगू बताई, क्योंकि कमरे में बैठ के हर चीज पॉसिबल है। तो मैं उसको कह रहा हूँ ना कि आप जो मसलन के ग्रुप में बैठ के आप बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसको जरा बड़ा करें ना आप, अब लोगों को बताएं ताकि लोग आपसे इल्म हासिल करें। मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग आपसे इल्म हासिल करें। यार, आप वो प्रैक्टिकल करके बेचारों ने उड़ाएं। कभी उड़ाया ही नहीं। तो उड़ाना प्रैक्टिकल की तरफ आ जाए ना, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल करके आ जाएं, जरा मैदान में थोड़ा दिखा दें, हमें भी पता चले, थोड़ा कि शोर में आपके इजाफा पास हो बहुत जाए। बड़ा तजर्बा है। हाँ जी, शोर में इजाफा हो जाए जी, हमारे। देखिए अगर कभी नहीं उड़ाए तो फिर उड़ने का दावा भी ना करें। उड़ने का दावा क्या भी चलें, नहीं है। असल बात ये सनी है। मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि बात बिल्कुल उन्होंने यही ऐसी की, पर अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके वालिद साहब का एक नाम था, उन्होंने उड़ा के अपना बनाया। उसके बाद वो उन्होंने कुछ तो बताया होगा बेटे को। कुछ ना कुछ उनकी जो विरासत वो आगे चलनी चाहिए थी, वो मैं कहा मैं वो नहीं उस तरह सवाल था। शाह जी माशाल्लाह उनकी उम्र कोई 45 के करीब तो होगी इस टाइम। मुझे याद आ गया कि मेरी उनकी 1-2 मुलाकातें, 1-2 दफा मेरे पास वो ऑफिस में तशरीफ लाए थे। 40-45 साल तो उम्र होगी, लेकिन 40-45 साल में मैंने उनको उड़ाते नहीं देखा। अच्छा ना मैंने कभी उनका नाम सुना था, मैं आपको सच बता दूं। अच्छा, नाम तो इनके मैसेज पे मैंने सुना है कि जी ये इन्होंने ये बात कही है कि मैं हर तरह का बता सकता हूँ कबूतर के बारे में। अच्छा, थोड़े दिन पहले वो भाई मुबशर की भी उनके साथ हुई थी कि जी मुबशर साहब मुझे छत पे बुलाएं, मैं बता सकता हूँ कि इनका कबूतर कितने बजे तक उड़ा हुआ है या कितने बजे तक उड़ सकता है। पर उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन मेरा इनको ये है कि दावत शौक है उनको, मेरा पैगाम है कि आप रखें। मैंने इतनी बड़ी उनको बात की है कि मैंने कबूतर यहाँ पे नहीं रखे हो। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आपके मुकाबले लग कितने गए? तकरीबन इस टाइम तक तकरीबन 20 घरों के साथ शाही लगती है। अच्छा, ये जो मलिक अरशद साहब के साथ आपने फॉर्मेट सेट किया है, जी, जी। इसमें क्या था आपके ज़हन में आया? इट इज़ नॉट अ इजी वर्क कि आपने इतवार को भी उड़ना है, इतवार के बाद आपने मंगल को उड़ना है,
मंगलकोट के, फिर आपने जुमेरात को सारा हिसाब किताब लगा के मैंने सोचना मलक पड़ता अरशद है। साहब को ना शाहजी, मैंने मलक हाँ, अरशद हाँ, साहब वही मैं कर रहा हूँ ना, मैं भी भूल कैलकुलेशन गया। से बोल। मैंने मलक अरशद साहब नहीं को क्या फोन किया था। दुकान बंद करने का इरादा है, क्या चक्कर है? नहीं, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो खुद सिर्फ कबूतरों की तरफ ध्यान नहीं, वो रखना है। 2 माह जरा कबूतरों की तरफ। मैंने मलक साहब को फोन किया था मैं जब, मैंने उनसे 4 इतवारों के शौक का कहा था, क्योंकि रमजान था और रमजान में वो उड़ाते नहीं है। मैंने उनको कहा था 4 इतवार, कहते नहीं मैं तेना 14 प्यारे उड़ा रहे। अच्छा फॉर्मेट उन्होंने दिया है? जी जी जी, उन्होंने मुझे कहा ये 14 प्यारे। फिर मैं दिल तो नहीं तोड़ सकता किसी का, अच्छा, खास करके मलक अरशद साहब का, वो सही। मेरे बड़े भाई भी हैं। अच्छे आदमी। उनका तो नहीं मैं नहीं, दिल मैं नहीं वहाँ तोड़ पे सकता। गया हूँ बड़े बहुत अच्छे माहौल में, ये polite और आदमी। बड़े दोस्ताना माहौल में, एक एनवायरनमेंट में, और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बहस भी हुई है। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मकसद ये है कि आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए एक अच्छे अंदाज से उस चीज़ को प्रेजेंट लेकिन ये बहस तो होनी बनती है। उस्ताद मोइन नवाज साहब के साथ एक दफा बैठे थे, वो कहते हैं ये तो कबूतरबाजी का हुस्न है, थोड़ी बहुत बहस तो होनी चाहिए, लेकिन जातियात पे नहीं आना चाहिए। जी जी जी। हाँ, बस अपना प्यार से दोनों आपने ने शौक कर लिया, बस बड़े ठीक है। म्यूचुअली बैठ के उन सारे मामलात को हल किया। उसके बाद फिर एक छोटा सा लाइव सेगमेंट भी हुआ और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी भी की। अब बात आ गई हमारे शौक में बढ़ चढ़ के जो बयान देने हैं ना, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम देखते नहीं कि क्या ये हम जो बात कह रहे हैं या ये काम कह रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या है, या ये सिर्फ हम शोहरत हासिल करने के लिए चीज़ें गैदर करते हैं। शोहरत हासिल करने के लिए बयान जारी कर दिया कि जी 14 प्यारे लगेंगे, 14 नहीं, या 2 माह छोड़ के लगा लो, हाँ, ये- या मुझे पता है कि ये 4 बजे कबूतर बैठेगा, ये 3 बजे बैठेगा, तो यानी ये मेरे ख्याल में इस जो नया दौर है, ये जो नया जदीद दौर है, जिसे सोशल मीडिया दौर है, कि पॉपुलैरिटी स्टन के अलावा कुछ नहीं है। हाफिज साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक प्रैक्टिकल प्लेयर हैं। अभी मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि जी 20 घरों से मेरे 1-to-1 मुकाबले तय पा गए, जी बिल्कुल। और ये बिसाख और जेठ के ही हुए होंगे जी, मेरे ख्याल में। बैसाख और और यही दोनों डिफिकल्ट सीजन है। अच्छा, ये जो इधर का एक बैसाख- अपना हुसन है। बिल्कुल, बैसाख जेठ में जो आपके प्यारे अब हो गए हैं, जी जी, तो आप बाकी जो टूर्नामेंट्स या जो सब दूसरे में सर। वो कैसे खेलेंगे फिर? वो तो इतवारों के है ना, 4 इतवारों के हैं, आगे जेठ भी है ना, तो आपके चलता रहना ना, ये चलता तो रहेगा। मुझे मलक साहब ने कहा, मलक अरशद साहब ने मुझे ये बात कही है कि तो ऐसा बाजियां- करते हैं कि बाजियां ये बाजियों होगा। में ना हम कबूतर जो हमारे प्यारे होंगे ना, हम कबूतर उसमें बाहर निकाल लें, बांध हाँ, के। एंट्रियों का भी तो पूछ लेना कि नहीं नहीं, वो मिलेंगे एंट्रियां कि आपको नहीं सारी मिलेंगी। शाहजी, नहीं, एंट्रियां देखिए लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकल है। मैंने देखा कि जब ये उड़ता है ना, तो ये हर कप में मौजूद आपको नजर हाँ, आएगा। बिल्कुल। मैं हमेशा इस बात को, पता नहीं हम लोग शायद इग्नोर कर देते हैं, जैसे ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो पार्टिसिपेशन है ना, सबसे बड़ी दिलेरी वो है। यार आज आपसे सवाल करने छोड़े आप, जी, जी। अभी अमानुल्लाह वाला तो मसला हो गया है। हाँ। यार उस्तादी का मकसद क्या होता है? आपको भी तो मिली हुई है ना। यार ये उस्तादी तो आजकल की जो उस्तादी है ना, ये सिर्फ एक ट्रेंड है। ट्रेंड एक है। नाम मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ नाम अपने के साथ लगाना। असल उस्तादी तो वो थी कि आप उस्ताद की खिदमत करते थे, 10-15 साल खिदमत करते थे, और फिर उससे कुछ चीज़ें हासिल करते थे। अब यहाँ पे डिलेमा 2 हो गए हैं, डिलेमा बड़ी माजत के साथ, क्योंकि मफाद परस्ती और कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, यानी मादा परस्ती, मफाद परस्ती का लफ्ज़ सीट एडजस्टमेंट टाइप नहीं जैसे हो जाता? वो अब लेन का और देन बन गया हुआ है। ठीक है, इस हाथ ले, इस हाथ, और दूसरा ट्रस्ट तो रहा ही नहीं है एक दूसरे पे। देखिए, पुराने जो असातिज़ा इकराम थे ना, ठीक है, खूबियाँ खामियाँ हर इंसान का आपस है, पर मैंने एक चीज़ देखा है कि वाकई इसमें कुछ लॉजिकली है कि आप किसी को 100% भी ट्रांसफ़र कर दोगे ना, तो फिर भी कहना रख ले आप कुछ आप सही। वो तो इंसान का ये फितरत। एक ये नहीं, और एक कुछ वो भी दौर था कि वाकई उस्ताद पे ट्रस्ट था। 15-15 साल खिदमतें की हैं उस्ताद की। शाहजी, सबसे पहली बात आ जाती है मलक अपने नज़ीर इतबार की, हाँ। इतमाद की। देखिए, मैं जब 2020 में इन हुआ हूँ ना कबूतरों में, तो मुझे तो कबूतर का पोटा भी नहीं पलटाना था, सीधी सी बात है। बाजियाँ मेरी लग गई थी उस्ताद अजहर से, उस्ताद मुल्ला से, और लगा भी मेरे जेठ ही था और बैसाख के 2 प्यारे। लेकिन बात ये है कि जब मैं बीच में इन होता गया हूँ, तब आपको पता प्रैक्टिकल। लेकिन सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो आपका मजबूत होना अपनी जगह। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं आज इस चीज़ को आजमा लूँ, मैं आज इस चीज़ को आजमा लूँ, फिर आप फेल हो जाएंगे। जिस चीज़ पे आपको यकीन है, पुख्ता चीज़ है, यकीन है ना आपका, वो आप कभी मार नहीं खा सकते। मेरा यकीन था कि मैं चीज़ कर लूँगा, तो मैंने चीज़ करके दिखाया, और कर भी रहा हूँ अल्लाह के फजल से। और मैंने उस दिन भी जब मलक साहब के घर बैठा हुआ था, मैंने उनके उस वक्त भी लाइव मैंने ये बात की है
کہ میرا दावत शौक सब दोस्तों के लिए है, जिसका दिल करे मेरे से 14 प्यारे उड़ा सकते हैं, जिसका दिल करे मैं रेडी आजकल हो रहा है। एक बात दूसरी, मलिक साहब के जब मैं घर बैठा था उस वक्त भी मैंने मलिक साहब को ये बात कही है। मलिक साहब ने मुझे कहा कि हम ना कबूतर बाइट छोड़ दें बांध के, ताकि आगे जेट की प्रवास के लिए ना हमारे कबूतर रेडी हों। मैंने उनसे भी ये बात की, मैंने कहा जी कबूतर हमने बाहर कोई नहीं निकाला, जब से मैं शौककार हूँ मैंने आज तक बाजी वाले दिन कबूतर बाहर नहीं निकाला। शुरू से उड़ाए भी अंदर उड़ाए आके बैठे हैं बंद कर। जेड की बाजियों में तो इजाजत है ना बाइट निकालने की, तो मैंने इस दफा भी नहीं, मैंने किसी साल बाइट नहीं निकालते ही नहीं मैं बाइट। कामरान ये जितनी बातें कर रहा है, मैं आपकी कथा कलामी माफ, प्रैक्टिकल बनता है। हाँ बातें करना बहुत आसान काम है जो आजकल हम करते हैं, ठीक है। आप जो कहते हैं ना कि जो वो खाली टीन होता है वो खड़कता है, आप मेरी बात आ गई। बात ये है, जो मैं आपको आज एक बात कहूँ, ये पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी। बात ये है कि आप सोशल मीडिया को उठा के देखें, जितने प्लेयर होंगे, जितने प्लेयर्स हैं, ना आपको उनके कमेंट्स मिलेंगे, ना आपको उनकी ग्रुप्स में वॉइसेस मिलेंगी, ना ठीक है? ज्यादा, ना कोई ऐसी चीज। क्यों? उनको इस चीज से गर्ज नहीं, उन्हें शौक से गर्ज है, उन्हें उड़ाने से गर्ज है। और जितने, अब कहना नहीं चाहिए, हवारी होंगे, पोस्टें भी उनके साथी सूती लगवा दें तो अच्छा, जितने हवारी होंगे, आप उसके बाद उनके कमेंट्स देखें, उनकी कबूतर परवरी देखें, उनके पॉइंट्स देखें, उनकी फिलॉसफी देखें, तो कहेंगे कि उनसे कबूतर परवरी वहीं पे आके खत्म हो गई। ये तो पता नहीं क्या अब कोई रिवॉर्ड है या कौन सी फाइनल सीट थी। वो जो सितंबर अस्सू चलता है ना, अस्सू के बाद जो ना कबूतरबाजी समंदर बन जाती है उसके बाद समंदर शुरू हो जाता है कि जी बहुत बड़ा समंदर। और जैसे ही वो मुकाबलों का टाइम आता है वो समंदर तो वो एक नाली बन जाती है, नदी चेंज हो जाता है। बात ये है, नदी बहुत बड़ी होती है। क्या जाती है, बात आ जाती है मीडिया पे। सारा कसूर जो नजरा गिरना है मीडिया वो तुराब हैदर पे गिरेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र ना करें। पहला नाम जो आएगा ना वो तुराब हैदर का। भाई बात ये है, हमारा काम है एक मौक़िफ़ ऑन एयर करना, एक चीज प्रेजेंट करना। आपका हाफिज साहब का मौक़िफ़ प्रेजेंट हुआ है ना, अब ये भी हो सकता है कल को जो पहला बयान जारी हो ना वो मेरे मुतालिक ही हो जाए। कि मैं आपको भी बता रहा हूँ, पेज की बता रहा हूँ। वो क्यों? यार एक ने बुलाया है, कामरान को बुला लिया, मुझे बुला लिया, जुटन आपको बुला लिया, सनी को बुला लिया। बात यह है कि क्या हमें इनके पास नहीं जाना चाहिए जाके इनका हाँ, खुदा ना खास्ता अगर ये कोई मिस यूज लैंग्वेज करे तो हम कहेंगे नहीं यार ये काम गलत है, आप ये हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते। ऑलरेडी ये तो ये हमेशा ही हुआ है। ये तो इसमें एक बंदा हो सकता है कि मैं उस बात से मुत्तफिक ना हूँ या ना हूँ, वो उनके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इस चीज़ का रखते हैं। अब जितनी ये बातें कर रहे थे ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, और जिनको ये कह रहे हैं मुझे कहने चाहिए वो नॉन प्रैक्टिकल हैं। क्या वो आएंगे? कोई भी नहीं आएगा, उम्मीद तो यही है। हाँ आ जाए तो कोई पता भी नहीं, वेलकम करूंगा, आ जाए मेरे साथ शौक करें। पिछले साल मेका में 50-60 घरों से इसका मुकाबला 55 करोड़ से था मुझे, मैंने राउंड अबाउट का, उससे पिछले साल तब 2 कम 70 से था। माशाल्लाह। क्या बात। मैं जो उस वक्त बात रह गई थी कि जो एंट्री देता है ना, मैंने बताया ना कि जब ये उठता है 6 का पौड़ने में 6 में, असल बहादुरी ये है, ठीक है। हमें तो एंट्री आ गई, फॉर एग्जाम्पल, यानी टूर्नामेंट के हिसाब से देखा जाए तो उसको एक एंट्री आ गई, ठीक है। पर जो दे रहा है, जो दलेरी, असल दलेरी ये है, लोगों के बाज़ औक़ात ऐसे भी हैं कि वो बड़े अच्छे उड़ रहे होते हैं पर उनसे आप एक एंट्री नहीं ले सकते, वो देंगे गिन के, अच्छा यार एक होते। कामरान भाई जितने भी कप उड़ेंगे ना, अभी हाजी गुजर साहब ने ना लाख रुपए एंट्री वाला करना है 4 इतवार का, उसमें भी उड़ेंगे। अच्छा, जितने कप उड़ेंगे ना, जो मिसाल के हाजी अताउल्ला माइयों साहब जिस कप में वो एंट्री देंगे उन सब कपों में मैं उड़ूंगा, क्योंकि ये इख्तियार तो मेरी पार्टी के बड़ों को है ना। ये जो आपने अभी बातें की, इनका इख्तियार भी, मतलब कि इस बारे में आपकी पार्टी के बड़े जो आपके साथ राजी, बिल्कुल ये भी होना चाहिए ना। जी उनको मैं जो बात समझा हाफिज साहब का, मुझे जो इनर फीलिंग आई है वो यही है कि बातों की बजाय मैदान में। हाँ जी, वो कहना यही चाह रहा है कि जो भी करना है ना, अगर तो आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बातें ना करें। क्योंकि देखिए सिर्फ बातें करके ना टाइम बहुत वेस्ट है। मेरा हुआ है ना, कुछ लोगों के पीछे लगा हूँ,
सालों साल लगा ही आया हूँ। इसी तरह हम हादसा में ये लोगों को कह के मैं बता देता हूँ, देखें उन लोगों का टाइम कितना वेस्ट होगा। उन लोगों को भी मेरा ये पैगाम है, आप जो प्रैक्टिकल मैदान में है ना, जो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा रब्ता करें तो अच्छी बात है। उससे ही आपका भी फ़ायदा होगा, आपकी रहनुमाई भी होगी। तो यहाँ प्लेटफार्म अपना मौजूद हो, प्लेटफार्म से अच्छी तो चीज़ ही कोई नहीं है। मैं भी देख लें प्लेटफार्म है, उसमें हर चीज़ जो शाम बैठ रहा है, जो उड़ रहा है, जो सारे मामलात हैं, तो वो कर रहा हूँ। ये दो मेरे शागिर्द हैं साथ, ये दोनों मेरे साथ होते हैं उस वक़्त। एक दो अभी आए भी नहीं हैं आज, वो भी आते तो मैं उनका भी आपसे तारफ़ करवा देता, लेकिन इनकी मुझे बड़ी बहुत ज़्यादा, आपको पता टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो उस्ताद हैं हाजी साहब, जी जी, उनका आपके साथ वो तो क्या बहुत ज़्यादा ताउन और एक तो सबसे पहली बात है, मेरे ताया जी हैं, मेरी घर वाली बात है, तो हर टाइम मतलब कि एक तो होता है ना कि आप जा रहे हैं, उस्ताद साहब के सोने का टाइम भी है, इंसान थोड़ा, मेरे तो घर वाली बात है, मैं तो रात को 2 बजे भी जाके कहूँगा ताया जी मेरा है काम करना ना, मेरा तो काम होना ही है। तो अभी तक कबूतर खुद उड़ाते हैं? नहीं, तैयारी हम देते हैं, लेकिन उड़ाते हैं उस्ताद अजी अताउल्लाह मोहम्मद साहब। यानी फैमिली में आप तो खुद जी, जी, घर जी, है जी, साहब वगैरह, जी, बिल्कुल। वो घर की बात, जी, जी। तैयारी खुद देते हैं, नीचे खुद बैठते हैं। जी, अच्छा, बिल्कुल। कारोबार को कैसे टाइम दे पाते हैं? असल में कारोबार हम मसलन के भाई हैं 3, एक भाई अपने काम पे है, जो मेरे वाला काम है मेरे साथ छोटा भाई होता है। तो कुछ ये जो मेरे साथ मेरी टीम है ना, ये जब मैं सुबह जाना, इनको समझाना है जैसे इन्होंने करना है, फिर कुछ मैंने दुकान पे टाइम दे देना, ज़्यादातर मेरा भाई देता है छोटा। अब देखे ना, मैं इधर बैठा हूँ तो दुकान तो जो मामलात हैं वो तो चलने ही चलने हैं ना, वो छोटा भाई चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल उसने कारोबार जो है ना हैंड ओवर भी किया हुआ है बेहतरीन। तो बस मेरा आधा घंटा भी चले जाना ना, मेरा निज़ाम चल जाता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे ना कामरान भाई, मेरी बात सुने, असल में ना बात ये है कि मेरे ये जो बैसाख और जेठ है ना, ये जो 2 माह या 3 माह, ये कोई रोजाना भी मुझे कहेगा मैं तैयार। वैसे एक ऑन द रिकॉर्ड ही पूछ लूँ, जी जी जी, लाला एहसान साहब उन्होंने आप ही को क्यों पिन पॉइंट किया? कोई तो बात की होगी बात- आपने? जी असल में ना मेरा उनके साथ मुकाबला तय हुआ था ना इस दफ़ा 6 प्यारे, तो उन्होंने ना मुझसे हाड़ बच्चों का लगाया था जाने वाली छत से, और 6 इतवार उन्होंने लगाए अपने घर से। जा रहा? उनका कोई दोस्त है। अच्छा। उससे पहले 2022 में मेरा उनके साथ मुकाबला तय हुआ ना, जब मेरे 6 प्यारे सिर्फ तय हुए थे, तो उसमें मैं 2 प्यारे उड़ा पाया, तो कुछ वजूहात की वजह से मैंने ना कबूतर नहीं उड़ा सका 22 में, तो 2 प्यारे वो जीते हुए थे। फिर 2023 में जब मेरा मुकाबला उनके घर गया, मैं जाके मुकाबले तय करके आया, फिर मैं माशाल्लाह उनसे 6 के 6 ही प्यारे जीत गया। तो हाड़ बच्चों का उनके साथ मेरा लगा हुआ था, तो मैं नहीं उड़ा पाया, मैंने उनकी जो बाजी बनती थी मैंने दे दी उनको कि आप ले लें। उसके बाद उनके दिल में आया, मेरे दिल में नहीं, उनके दिल में आया कि उन्होंने मुझे चैलेंज किया है, और मुझे खुशी की ये बात लगी ना कि वो उनकी मसलन के इस वक्त वो दादा बन चुके हैं, ठीक है, वो दादा बन चुके हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे मिला हूँ, जुला हूँ, बैठा उनके घर भी गया हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं, दादा बन चुके। देखे ना, वो दादा माशाल्लाह बन चुके हैं, अभी तो हम तो बच्चे हैं, ठीक है। बात ये उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मेरे लिए तो फख्र की बात है, उन्होंने मुझे फिर बहुत बड़ा कबूतरबाज समझा ना, उनकी मेहरबानी है। तो फिर उन्होंने अगर बड़ा समझा है तो अब वो बड़ेपन का मुजाहरा करें, मेरे साथ उतनी बड़ी बाजी लगी। इनके जो उस्ताद हैं हाजी मलिक लतीफ़ हुमायूं साहब, एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है वो तो, पूरी तारीख है। तो देखिए ना, आप सीनियर तो तरीन आप हो गए, आपसे पहले नयाब भाई हो गए, आप लोग तो इन सब के इन रहे हैं ना, इनके अंदर नयाब भाई स्पेशली, तो क्या उनके बारे में तो थोड़ा बताएं, कैसे यार देखिए बात ये है, उस वक्त में कौन कौन से उस्ताद होते थे, मुखालिफ इनके कैसे थे, किस तरह से ये लोग एक दूसरे से मिलते थे या कोई चैलेंज करते यार थे? बात ये है कि आज के इस दौर में ना थोड़ा सा एक इसको डिलेमा कह लें आप। पहले ये था, ये नहीं कि पहले मसाइल नहीं हुए होते थे या कुछ, पर ये कहते हैं ना कि अखदा है या बड़ा। हाजी लतीफ़ साहब 50 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आज का नहीं है, और फिर लगातार वो एक जगह पे खड़े चलते हैं, फिर उन्होंने अपनी पहचान, अपनी शनाख्त बनाई, यानी लंडे बाजार से उनका शौक़ होना, ठीक है। फिर उसके बाद ये फातेह लाहौर उन्होंने अपना स्टार्ट किया, फिर उसको लेके चले, ठीक है। पहले उस हादसा में ये होता था कि पहले भी मुकाबले रखते थे, पर उनके कुछ असूल थे, ज़वाबित थे, आप डायरेक्ट किसी को आवाज़ नहीं दे सकते थे, ऐसे नहीं देते थे ना, नहीं दे सकते थे।
आपने कठ में भी बैठने के आदाब थे, कठ में भी आपने डायरेक्ट आवाज नहीं देनी, आपने अपने उस्ताद को कहना कि जी मेरा उधर नाल जॉब करवा, उसने आगे अपने मोरी को कहना, मोरी से कहना, और फिर अगर हो सकता हुआ तब है, नहीं था अदरवाइज। और अगर थड़े का भी होना तो उसने जाना, जाके बड़े इज्जत एहतराम से जाना कि जी मैं आया, मेरा जॉब करवा। और अगर अगले ने समझना, आजकल तो खैर हैव टू चेंज थिंग। मैं वो इसलिए क्योंकि वो जो क्लिप है ना, वो क्लिप एक था कि आप कहते कि जी एक अच्छे माहौल में, ठीक है आजकल का दौर बदल गया है, उसके अंदाज बदल गए हैं, पर उसके बावजूद आप ये कहें कि जी छाड़ दो जी, वो नहीं होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिकल खिलाड़ी है। हाँ, पहले असूली तौर पे तो मैं आज भी इस चीज़ का कायल हूँ, मीडिया का होने के बावजूद, कि जी जस्ट हैव अ फोन कॉल नाउ कि यार मैंने आपसे अगला नहीं कर रहा। फिर आप देखते हैं कि नहीं, आप मीडिया में भी अगर आ रहे हैं, जब वो मीडिया में नहीं आए ना, आजकल तो क्लिपों का दौर हो गया, क्लिप बनाओ ग्रुपों में फेंक दो, और ग्रुपों में फेंक दो या फेसबुक पे लगा दो, और वो जो कोई ऐसी चीज़ होगी लोग उठा के ना, अब वो कर देंगे, वो दूसरे लफ्ज़ फिर ज़्यादा खतरनाक हो जाए। मैं कह दूंगा कि आप चुक के पहचानगे, हेलो जी, पेश करो, ऐसी है पॉजिटिव एक्टिविटी कौन सी उठा के नहीं। तो फिर ये मीडिया के होने के बावजूद अब क्या हल है इसका? अगर शौक वैसे अगर ये क्लिप बना दे तो बुरी बात तो नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये कह ही नहीं रहा कि किस तरह से करना चाहिए मैसेज अपना। यार ये देखें, बात ये है, ये हाफिज मौजूद था, हैव आई कॉल्ड देम, फर्स्ट से ये होनी चाहिए। यार बात ये है, एक होती है कि आप ना लगाते हैं, एक दावत शौक लगाते हैं जैसे पंजाब में, ठीक है, कि यार ये मैं 500 बंदों को कहाँ फ़ोन करूँगा, मैं एक अच्छा दोस्ताना माहौल में एक दावत शौक लगाता हूँ कि जी जो भाई मुझसे शौक करना चाहे, मेरी छत ओपन है, ये नंबर है, और इन तरीकों के मुताबिक मुझसे शौक कर, हैव अ सेंस लो। आप एक बंदे को पिन पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, जस्ट यू हैव टू कॉल देम, आप उसे कॉल कर लो, कॉल करके नहीं, कॉल आई थी उनकी मुझे बाद में, लाला एहसान साहब की ना, कुछ दिन पहले मुझे कॉल आई है कि मेरा मातमारा से भी शौक हो गया, मेरा मातमारों से भी शौक हुआ है, मेरा उस्ताद मुन्ना से भी हुआ है, लेकिन इन्होंने मुझे चैलेंज किया हुआ था, इसका जवाब देना था तो उसके बाद ही शौक होना था। वो तो ठीक है, नहीं वही कहने का था कि अच्छा कि कॉल पहले आई कि चैलेंज पहले आया, पहले चैलेंज आया, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, फिर तो बात हो गई ना। हाँ, ये तो चैलेंज तो बाद में आना चाहिए था ना, पहले तो कॉल जानी चाहिए थी। मेरा पॉइंट ऑफ तो फिर वो सही साबित हो गया ना, फिर तो उन्होंने कहा कि तुसी जो चैलेंज कीते, फिर मैं पहले चैलेंज का जवाब देना, तो फिर बाकी काम भी कर लूँ। अबे तुम मीडिया पे आया, मैं भी तो एक दफा आ जाऊँ ना, लोग ये तो ना समझा मैं डर गया। नहीं वो एक वैसे भी एक जेन्युइनली एक जेन्युइन से आपने जिस मीडियम को रख के आपने चैलेंज किया, उस मीडियम पे हम जवाब देंगे, मकसद आपका ये था। जी, बात मेरी प्रूफ होगी कि नहीं होगी, बात यही हुई कि बात ये है कि हमारा काम है उस हाफिज के पास भी जाना, इनके पास भी जाना, वी हैव टू प्रेजेंट देम, हमारा काम है इनको प्रेजेंट करना, हमारा अपने जो हमारा फर्ज है। सही बात, ठीक है, हम अपने फर्ज के, इन्होंने बुलाया, हम इनके पास आ, ठीक है, इन्होंने कहा कि जी मंगल वाले दिन आप हमारे लिए टाइम रखें, कहा जी आते कहा जी मैंने कोई खास उनका कि जी आप हमारे पास आए, खाना आपने हमारे साथ है, तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा खैरियत, उनका जी आप तशरीफ लाए, आ गए। बात यह है कि एक अच्छा शौकीन, एक अच्छा खिलाड़ी जो मैदान में है, मैदान में मौजूद है, कि क्या मैदान में ना हो तब भी बात है, तब भी बात समझ में आती है। तो बात यह है कि चीज़ें होनी चाहिए स्पोर्टमैन स्पिरिट में, दिलेरी से, और इसको बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछूंगा कि इतना जो जोशीलापन है किसी एक पॉइंट की वजह से है ना, वो पॉइंट बताओ कबूतर में कौन सा होता है? क्यों नहीं, ये मैंने ये देखा है कि आपको जुनून, रियल मानों में जुनून है। असल में शाह जी मुझे बचपन से ये बहुत शौक है, ताया जी को देख देख के। ताया जी, जाहिर सी बात है, ताया जी को देखते, फिर चाचा जी आ गए, चाचा जी के बाद अताउल्ला साहब बड़े इन, फिर अताउल्ला साहब को देखते हो तो फिर ज़्यादा ही ज़रा बढ़ गया। फिर घर में छत नहीं बनाने की ज़्यादा, क्योंकि हम 3 भाई हैं ना, तो दोनों भाइयों को भी शौक़ नहीं है, अब्बा जी को भी शौक़ नहीं है, तो फिर जुनून था मेरा बहुत ज़्यादा
फिर वो जगह ली, जब तो कारोबार के लिए ली बेसिक, लेकिन पहले ऊपर मैंने कहा वो घर में किसी की भी इजाज़त नहीं थी, और मैंने कहा जी बस थोड़े जे रखने ने, बस ए जरा थोड़ा जे है ना, थोड़ा जे है नहीं बस। जब मैंने ये अपने घर के ऊपर भी खुडे बनाए ना जोड़ों के लिए, एक छोटा सा खुडा बनाया, अब पूरी छाती कवर है। तो वो बात ये थोड़ा सा करते करते मैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इनको ये इनकी यही छत समझता रहा हूँ पिछले कई सालों से। नहीं अभी मैं अच्छा? नयाब भाई को छत पे नहीं गए? नहीं मैंने लेके जाना है अभी, आपको छत भी दिखानी है। धुआं बड़ा वहाँ, शाम है धुआं तो देखूं तो सही जाके जहाँ नहीं, से आज उड़ाई जा दिखाते रहा हैं, है, आज दिखाते ये हैं। जहाँ से उड़ा रहा है, मैं तो यही समझता रहा हूँ। बाऊ ताहिर आया ना पहली दफा, वो इनकी छत पे इफ्तिताह था छत का में करना, कहते इधर उड़ना चिट्टा है तो आना चीना है। इतने माहौल उधर का ऐसा सारी, तो फिर तो इसकी दलेरी को सलाम पेश कर लेना चाहिए, जहाँ से ये शौक हम किया जा लोग ये वैसे पोल्यूशन को रोते हैं, ये उन्होंने इनकी बनाई छाती कल ऐसे पोल्यूशन पे मैंने बड़ी पोल्यूशन गुफ्तगू कर ली है, पूरा लाहौर मेरे पीछे ना डलवा देना। कल पोल्यूशन पे ना वहाँ पे बड़ी गुफ्तगू कर ली मुंतजर से। अच्छा क्या कल लाहौर के हवाले से गुफ्तगू होती रही, मैंने कहा कि लाहौर में कबूतर क्यों नहीं उड़ते? उड़ते तो हैं और कैसे उड़ते रात भाई? शाम तक तो चले गए। यार फिर बात हो जाएगी, बात करे खराब हो जाएगी। नहीं उड़ते हैं अभी यहाँ पे, ऐसी बात नहीं उड़ते। कहाँ मुंतजर साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, आप हाँ, सबको ये तो कैसे नहीं बात का पता यार है। बात ये है वह कंटिन्यूस प्रवास है यहाँ पे बहुत मैं नहीं कह रहा किसी में कुछ को ना डिग्रेड कर रहा हूँ। नहीं आप एक कल भी चीज मैंने- देखें, देखें ना मुंतजर भाई भी जो है हमारी पार्टी से है, मेरा बड़ा भाई है, आप देखें उनका शौक अभी कम हुआ है, वो भी एक कहता उड़ा है, के भी जीत जाता है, देखिए देखे ना उनका शौक कम हुआ है, तो फिर ये छोटे भाई का शौक कैसे कम हो जाएगा? नहीं क्या उड़ते हैं बड़े मियाँ तो कबूतर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान नहीं अल्लाह। मुंतजर जब कबूतर छोड़ता है पूरे यकीन से छोड़ता है कि आज मैं जीत, और वो जीतता है तो उड़ते हैं तो जीतता है ना। हाँ, आप क्या ये कहेंगे? नहीं मैं ये नहीं, उड़ने से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल उड़ते ही नहीं है, यानी कबूतरों को पर लगे पड़ जाओ पर लगे वो उड़ेंगे। मेरा एक वैसे फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन या एक नॉलेज, या हम बाहर आप जाते हो खारियाँ, आप गुजरात जाते हो, आप जेलम जाते हो, आप पिंडी जाते हो, आप सरगोदा जाते हो, आप मंडी जाते हो, आप पिपला जाते हो, वहाँ पर हमसे एक बहस की जाती है, एज आ लाहौरी बहस की जाती है, ठीक है। मेरा एक ये कहते हैं कि एकेडमिक बहस थी इन लोगों के साथ, कल भी थी आज भी, आप पूछ रहे हैं मैं आपके साथ भी कर लेता हूँ। वो यही है कि मैंने मिसाल दी, मैं कहा रीसेंट मिसाल ज़्यादा अच्छी रहती है, मिट्टू लाली के कबूतर पे एतराज हो गया जो 8 बजे बैठा, हाँ। अगले दिन वही अगर 4 बजे या 2 बजे बैठ जाता तो काम पक्का हो जाना था, अगले दिन वो फिर वहीं बैठा, उससे अगले दिन फिर वो, यानी 10-15 मिनट ऊपर नीचे, यानी उसी गेट में। आधा घंटा अगर घंटा आप भी 7:30 के बाद ही बैठ रहे हैं, पहले दिन हो दूसरे दिन है वो कंटिन्यूस इतने जिस दिन, अब वो या शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं 100% यहाँ उस तरह की परवाज लेना, जी मैंने इट इज टू डिफिकल्ट, जी मैंने ऐसी इट इज टू डिफिकल्ट। यहाँ तो कंफर्म पता होता है कि आ गया थले। नहीं, लेकिन यहाँ पे मसाइल और भी है ना। अब आप देखिए, आप दूसरे शहरों में, हमारे यहाँ पता क्या होता है, वो लोग इतना पानी भी दे देते हैं। मुझे याद है आशिफ हुसैन साहब की, वो कबूतर नीचे नीचे फिरे जा रहे हैं, 7:30 हो गए। मैं कहा उस्ताद जी इन्होंने आज उत्ते जाना है कि साढ़े आने की वजह तो कितने पहले पै जाए, तुम कहोगे लै भी तेरे कदम पै गए। कहते परवाह ना करो, सूरज चढ़ जाना कबूतर उत्ते जा ही जाने। अच्छा, मैं कहा जी अच्छा, मैं कहा चलो देखते। सर ऐसे ही हुआ, कबूतर मतलब सूरज चढ़ता चला गया, कबूतर अपना गेड़ा बढ़ाते गए चले गए। कबूतर को पानी इतना दिया हुआ था, कबूतर नीचे 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 जाओ जी फिर उस्ताद जी, अब उस्ताद हैं तो अब मैं उस्ताद बताना, से पूछ लो। हमारे यहाँ क्या होता है, हाँ, हमारे यहाँ कबूतर यूं किया, कबूतर उड़ गए, और मैं कहा और तुराब भाई सुनाए कैसे हैं, ठीक है। अब जब देखना ना तो कबूतर गायब होना चाहिए। हाँ, अगर जब कबूतर नीचे रह जाता है ना, और मैंने अक्सर छतों पे अपने लाहौर में देखा है, जिनका जो कबूतर नीचे रह गया, जितना मर्जी अच्छा कबूतर है, बहादुर कबूतर, वो नीचे है ना तो समझे 11 साढ़े 11 वो बैठ गया। ये हमारे माहौल में कोई है डिफरेंस ऐसा? जी मैं मानता हूँ जहाँ का Atmospheric माहौल है, problem है ये। पोल्यूशन है, यही चीज मैं बहस कर रहा था कि बात ये है कि हाँ जी आप इस चीज से मुत्तफिक हो जो भी जो बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये ठीक है। लाहौर का और बैठ का फर्क है। मैं बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। लाहौर, कसूर से उस तरफ को चले जाएं पत्तों की, और ये रिनाला तक, रिनाले तक चले जाएं, रिनाले तक आपको यही माहौल मिलेगा जो हमारा है। अच्छा, आगे उकाड़ा से आगे साहिवाल, आगे का माहौल फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा। फिर उधर से इस तरफ निकल जाए, टोबा साइड, कमालिया साइड, वो सारा एक जैसा माहौल मिलेगा। ठीक है।
और वहाँ से आप चले जाएं पिपला वाली साइड, मतलब अगर उस साइड से हम दूसरी साइड को निकल जाते हैं, जहाँ से मतलब जंग से चनियोट से मंडी सरगोदा, वो उनका माहौल हो रहा है। और एक और चीज़ बताऊँ, अभी हम गए थे अंजुम शबीर मोना जलालपुर भटिया में एक छत है, 3 हफ्ते हो गए तकरीबन, 6:15 बजे लाल हो रहा था आसमान। सबसे पहले लाहौरिये की बात नोट करते हैं, देखो कितना क्लियर आसमान है, लाल 6:15 बजे सर्दियों में। 5 बजे आपकी अजान हो रही है, 5:15 बजे। कितने बजे हो रही है मगरिब? 5:15 5:30 हो रही है। हाँ जी। 6:15 बजे आसमान पे लाली थी। तो कबूतर ने तो वहां से सूरज को देखना है। बड़े बड़े फर्क पड़ते हैं, नहीं फर्क है, ये टाइम का फर्क है वहाँ पे। कबूतरों का भी फर्क है। हाँ, नहीं, कबूतरों का भी फर्क बहुत ज्यादा फर्क बहुत फर्क है। बहुत फर्क क्या फर्क है? हमारे यहाँ ना छोटा कबूतर, छोटे साइज के खिंचे हुए कबूतर पसंद किए जाते हैं लाहौर में। छोटा अच्छा, हाँ, तो ज्यादा बड़े साइज के कबूतर हमारे यहाँ पसंद इसी वजह से नहीं पसंद किए जाते कि नीचे रह गया तो फिर रह गया। क्या हाँ, फिर नीचे तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। अच्छा, गुफ्तगू ये हो रही थी, देखिए शुक्र मेला का बात यह है कि अब माशाल्लाह आप भी उस्ताद हैं, अब तो आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब तो आप छतें उड़ा रहे हैं। ये एक जोशीला खिलाड़ी है, मैं बीच में आप दोनों के दरमियान आप सीनियर मस्कीन। उस्ताद हैं। क्योंकि इस साल इन्होंने भी उड़ना है, हाँ, बाजी लगी हुई है। हाँ? हाँ जी, है। इनके नाम का पर्चा लगा जी। क्या बात है, तो वही नया भाई की चर्चा। बस सही हो गया। अब इस दफा उस्ताद तुराब हैदर। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अभी ये उस्तादियों की बात होती है, हमारे यहाँ लाहौर के हिसाब से अगर देखें ना, तो हमारा एक दोस्त है उस्ताद कामिल जैदी, हाँ जी, वो कहता है जी मैं चाइना के उस्ताद भी हैं कहीं, वो अपने आप को भी चाइना का उस्ताद कहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लाहौर में हमारे यहाँ उस्तादियाँ एक ही काम, ये सिर्फ कबूतर उड़ाना जो है ना, यही सिर्फ उस्तादी नहीं है, बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। एंट्रियां जमा करनी, हिसाब किताब रखना, लोगों को जोड़ना, लोगों का टूर्नामेंट्स का हिसाब रखना, बाजी में पर ऊपर नीचे हो गए, सारे हिसाब रखना, हर आज चीज आपने एक करना। बड़ी खूबसूरत बात कह दी, मैंने जान के काटी है, वो मैं भूल हाँ। गया था। वो मुझे क्या कही इस है वजह से भी कि हम इस शोबे में से ना हाँ, एक उस चीज को निकाल बैठे हैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एक बहुत एक अहम किरदार है। उस चीज की भी उस्तादी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नहीं, वो उस्तादी एडमिनिस्ट्रेशन के जो किरदार को ना, बिल्कुल हम इस खेल चाली एडमिनिस्ट्रेशन पे रहे हैं, बिल्कुल, बॉडीज पे चल रहे हैं, और यानी उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर। हम उसको बलाए ताक कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी लो जी, ये दिहाड़ीबाज आ गए, ये जी फलां आ गए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो किरदार है ना, वो किसी भी शौक को बढ़ाने, उसको प्रमोट करने में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि वो उन लोगों को गैदर करता है, उन लोगों को मौका फराहम करता है, प्लेटफॉर्म देता है, और उस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए वो अपना टाइम स्पेंड करता है, फिर जाके बनाता है। अब जिस तरह ये छत उड़ाते हैं, अगर ये छत पे टाइम ना दे, कबूतर ना छोड़ें, क्या ये शौक कर सकेंगे? नहीं हो चेक एंड बैलेंस, छत का चेक एंड बैलेंस है। दाना कितने बजे डाल दिया, पानी कितने बजे डाल दिया, हर चीज का एक निज़ाम कितने है। कबूतर किस पिंजरे में है, कितने कबूतर किस पिंजरे में है, कौन सा कितने बजे तक बैठ रहा है, उसको अलग कर दो, फला को अलग कर दो। बिल्कुल ऐसा। मतलब हर चीज में एडमिनिस्ट्रेशन छत पे भी है। फिर ये उम्र दराज को देख लें, जितनी दफा कॉल करनी है मैंने इसको करनी है कि यार ये फला छत नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, बता रहा हूँ यार, फला जगह मीरपुर से उसकी ख्याम की लिख लो, रब्बा से फला की लिख लो, फला से की लिख, फिर इसके फोन आने। मतलब इसने मेरी छतों की तो नहीं काउंटिंग करनी, इसने सरगोदे की भी करनी, इसने पिपला की भी करनी, इसने फैसलाबाद की भी करनी, इसने पिंडी बटिया की भी करनी, इसने लाहौर की भी करनी। अच्छा, हमारे अलग है, लाहौर के फॉर्मेट अलग है, पंजाब की अलग है, फिर उसको अलग गैदर करना है, उसको अलग गैदर करना है। मैं ये कहता हूँ, साहब के बाबा साहब इस्लाम दे रहे हैं। हाँ जी, वालेकुम सलाम। किस वक्त पे, वालेकुम अस्सलाम। तो ये देखे ना, अब ये चीजें सारी जो है ना, इनको गैदर करना, ये लोग असल मेन काम इसका है, नुमान का है। ये जो एक एक का हिसाब भी रख रहे हैं, एक एक की, ये जो इस वजह से कुछ हमारे यहाँ लाहौर में कुछ लोगों ने कहा जी ट्रेंड हो गया, उस्तादी दे देते हैं, एम ही दे देते हैं। भाई एम ही नहीं देते, वो बंदा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की मेहनत कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा तो उस चीज पर भी दी जाए। उस्ताद तुराब हैदर को उस्तादी इसी वजह से मिली हुई है, ये हकीकत है। उस्ताद तुराब हैदर सबको तुराब में लेके चलते हैं, हमारे साथ है, हमारे सीनियर हैं, हमें सिखाते हैं, बताते हैं। मेरा ख्याल है कि तुराब भाई से जब मेरी फोन पे बाद घंटे के बाद कॉल कटती है, हमारी 3 दफा कटती है,
तो मतलब 3 घंटे तो कम से कम हमारी बात हो रही होती है जब भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपने एक प्यार मोहब्बत भरा वाला पैगाम दिया है। अब हम चलेंगे आपने छत पे। शौकीन हज़रात को भी दिया है पैगाम। उम्मीद है कि आपको एक मुस्बत अपना जवाब अपना आएगा। पैगाम वापसी दोहरा दे ताकि हम इसको क्लोज करें वीडियो। जी, मेरा पैगाम वही लाला एहसान साहब के लिए दावत शौक़ है, मेरे पास आए और मेरे साथ 14 प्यारे तय करें बगैर किसी बहस के, बड़ेपन का मुजाहरा करें। और दूसरे नंबर पे हमाद भट्ट साहब, आपके लिए मेरा पैगाम है कि आप मेरे साथ जेठ की यार बाजी वैसे लगाएं। हमाद बिन शरीफ आदमी कसम खुदा। नहीं वो बहुत शरीफ ऐसे आदमी है। नहीं। देखें हाँ, भाईजान, जो देखें बेचारा शरीफ बंदा है, पर मेरे ख्याल में बातों में आ गया। भाईजान नहीं नहीं, इंतहाई बात तो शरीफ नहीं, आदमी वो है पता है मेरे ख्याल उनके हमारा अब्बू की भी तरफ से कुछ चीजें कुछ भाईजान मेरी बात सुने, बताते जरूर हैं। भाईजान एक मुझे भी पता है कि इंतहाई वो शरीफ बताते आदमी हैं। है, हाँ। तो हम भी शरीफ आदमी हैं। हाँ। शरीफाना नहीं, वो अंदाज में बेचारा हम- सिर्फ बातों में आने से शौक बुरा था, करता मेरी नहीं। बात ही समझे कि ब्रीडिंग का उसे शौक है, अपने वालिद को लेकर चल रहा है। उस वक्त वो इस बात पे नहीं उन्होंने फोकस किया कि यार मेरा ताल्लुक ब्रीडिंग से है, मेरा ताल्लुक उड़ान से नहीं है। और इस किस्म के जो दावे हैं मेरे ख्याल में ये अनरियलिस्टिक होते हैं। यार फिर वो ग्रुप में जो लोगों के जिनके वो बता रहे होते हैं, मैं तो ग्रुप में हूँ ना। अच्छा आप हैं? यार यानी वो- आप तो फिर फैज याबों में से हैं। लेकिन देखे ना लोग भी तो फिर आगे से कह रहे थे हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप फैज मैं याबों भी में उसी से ग्रुप में हैं। हूँ भाई, हाँ? उसी ग्रुप में तो बातें भाईजान फिर देखे ना कि वो लोग जो उनको कह रहे थे हाँ जी आप सही बता रहे हैं, नहीं, तो फिर पता ही नहीं है तो ना मैं भाईजान। तभी तो कहा आप फैज याब हुए हैं। असल में बात ये है। नहीं हमारे बड़े भाई प्यारा भाई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमाद भाई के तवज्जुह से ही चले कि हमाद इस तवज्जुह से हमाद भाई से भी कि हमाद भाई आप जो भी बात हो प्यार मोहब्बत से हाफिज साहब के साथ बैठ के अगर हो सकता हाँ, तो बिल्कुल तय होना करें। चाहिए। लेकिन ये कि वो बेचारा ऐसे इस तरह की ना बयानबाजी में है है नहीं। नहीं, पर मेरे ख्याल में आप उसको मजीद इस चीज को मेरे लिंगर मुताबिक तो होनी आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। एक दानिशमंदाना चीज का तकाजा यह है कि जो काम आता ना हो ना इंसान को, मेरे ख्याल में उसकी तो जल्दी यार बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आप देखा है, मतलब अगर मुझे पता भी है ना कि कबूतरबाजी कैसे होती है, मैं हर किसी की छत पे जाता हूँ। खुरम के पास मैं पता नहीं कितना अरसा रुका हूँ, खुरम से सीखी हुई मेरी सारी कबूतरबाजी ज्यादातर पीर फवाद की छत पे। बड़ी चीजें मैंने उससे सीखी। लेकिन जब आप बीइंग एक कबूतरबाज प्रैक्टिकल उतरते हैं ना, तब जाके पता चलता है वो फला चीज तो पता ही नहीं थी, फला चीज तो वो बाद में आती है बातें आगे। बहरहाल बहुत शुक्रगुजार है आपके। अभी हम जाएंगे जी हाफिज आपकी छत पे जाना है। बिल्कुल और जी, वहाँ भाई पे जाना जाके जरूरी है। शाम में धुआं आज वहाँ मैंने चेक करेंगे। शाह साहब को मैंने देखी नहीं हुई आज आपको दिखाते हैं छत वहाँ पे। लीजिए ले जी, अल्लाह हाफिज। 5 मिनट के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होगा।